Okay, welcome back. So in previous class we have seen the quantum numbers. So there are four quantum numbers. Out of four quantum numbers, we have covered the two quantum number, that is principal quantum number and azimuthal quantum number. We have already explained. So what is the principal quantum number? The quantum number which explain or which shows the main energy level of an electron in an atom is known as principal quantum number. It is denoted by small n. What is second quantum number? Second quantum number is azimuthal quantum number. This quantum number explain the shape of orbital. Okay, so we have seen these two quantum number. Principal quantum number is denoted by small n. Azimuthal quantum number is denoted by small n. Okay, and formula for calculation of azimuthal quantum number is L is equal to n minus 1. Value of azimuthal quantum number always equal to n. Okay, now third quantum number is the magnetic quantum number. This quantum number explain the shape of orbital. So not shape of orbital. This quantum number explain the orientation of orbital. This quantum number is denoted by small m. 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 Now, this quantum number designates specific three-dimensional orientation of the orbital. This quantum number explains what? Orientation. Because we know that there are how many axes? Three-dimensional structure. It will have the three axes: x-axis, y-axis, and z-axis. So orbital is oriented along which axis or along which orientation is there. So on that basis, on the three-dimensional axis or 3D axis, on which axis orbital is oriented. So this gives idea by which quantum number? Magnetic quantum number. This quantum number explains the orientation of orbital. Now, next is, we know that S orbital is spherical shape, and when we know that if the orbital is spherical shape, it will have three axes: x-axis, y-axis, and z-axis. So S orbital can be oriented around all the three axes: x-axis, y-axis, and z-axis. It is not possible to explain the orientation or specific orientation of the orbital. So spherical orbital, we know that spherical orbital already it is having spherical shape. That's why it is not possible to tell that the orientation of s orbital in which direction. So it is multi-directional. Spherical orbital is what? Multi-directional. If I put one, suppose here cork ball is there, and if I ask you that what is the direction of this ball, you cannot tell easily that which direction is there, because it is a spherical shape ball. Uh, is having spherical shape, that's why we cannot tell the exact orientation of the ball. So spherical shape s orbital will have all the direction, where it is oriented in this direction, this direction, this direction, any direction. So it is the multi-directional. But when we go for the p orbital, we know that p orbital is having which type of shape? Dumbbell shape. This is the dumbbell shape. And if I draw this dumbbell shape along the x-axis, this axis is suppose x-axis, this axis is x-axis, and this x-axis or this lobe of p orbital, this is the lobe of p orbital, this is one lobe and it is another lobe. This lobe is oriented along the x-axis. That's why this axis is known as px. This orbital is known as which orbital? Px orbital. This orbital is what? Px. If the lobe of p orbital oriented along the x-axis, that axis is known as p. अगर लोब x एक्सिस के along oriented हो रहा तो वो ऑर्बिटल को क्या कहेंगे आप? px ऑर्बिटल. अगर ये एक्सिस, सपोज दिस एक्सिस इज द y एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा है? अब ये कौन सा है? z एक्सिस. तो ये जो p ऑर्बिटल का लोब है ये किसके अलोंग ओरिएंटेड है? किसके किसके
किसके इसमें ओरिएंटेड है, कौन से एक्सिस के, एक्स के ओरिएंटेड है, ठीक है, दिस एक्सिस द एक्सिस। तो एक्स को क्या करा, पूरी तरह इसने कवर किया, दिस लोब पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के जो लोब है वो किसको ओरिएंट किए, पूरा किस तरह से कवर किए, एक्स को, इसलिए इसका नाम हो गया पी एक्स। इसी तरह अब ये एक्सिस कौन सा है, दिस एक्सिस द वाई एक्सिस, इस तरह इधर जो बोले दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस। नाउ लोब ऑफ पी ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड अलोंग द वाई एक्सिस। लोब क्या है इसका, कौन से एक्सिस के ओरिएंटेड होगा, किसके अलोंग ओरिएंटेड होगा, वाई एक्सिस, इसलिए इसका होगा पी वाई ऑर्बिटल। इसी तरह ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सा है, ये एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस, और लोब क्या हुआ, ये जेड के अराउंड में ओरिएंटेड होगा, इसलिए इसका नाम होगा 2pz। So p orbital will have how many orientations? Three orientation. Px, Py and Pz. There are three orientations: Px, Py and Pz. Now this quantum number explain the orientation of orbital. It is denoted by what? Small m. The formula for calculation of value of m is equal to 2l plus 1. What is formula? 2l plus 1. This is the formula for calculation of the value of m. M is equal to 2l plus 1, where L is what? L is a azimuthal quantum number or secondary quantum. ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जांपल से। So here it is the 1s orbital. This orbital is the 1s. इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 is what? Principal quantum number. यहाँ पे 2 क्या है? This is principal quantum number. Value of n और value of principal quantum number. This is the 3. तो इसका मतलब क्या है, 1 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर रहा, एस क्या एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, एस एक्सप्लेन कर रहा कि ये जो ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल का शेप क्या है, स्फेरिकल शेप। 2x क्या एक्सप्लेन कर रहा, दिस आल्सो स्फेरिकल शेप। here s explain what, spherical shape, here s also explain spherical shape। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ये हो गया एजीमुथल क्वांटम, ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो गया एजीमुथल। हियर आल्सो इट इज प्रिंसिपल एंड इज एजीमुथल। लेकिन एस ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है मल्टी डायरेक्शनल ओरिएंटेशन है, इसलिए उसका शेप कौन से डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, वाई में है या जेड में है, यह आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पी ऑर्बिटल। नाउ वी नो दैट द पी ऑर्बिटल इज डम्बेल शेप and the orientation of p orbital can be easily explained, whether the p orbital is oriented along x-axis, along y-axis or along z-axis. So this can be explained. So here this orbital is now x, this orbital is p orbital and it is oriented along the x-axis. अब हम मालूम करेंगे कि m के वैल्यू 3 कैसा है। सो m के वैल्यू यहाँ पे 3 कैसा है, m इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसका फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, ठीक है। अब l की वैल्यू क्या है यहाँ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ l, कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। अब आपको पता है l इज इक्वल टू, अगर 0 रहा तो कौन सा ऑर्बिटल है, s, l इज इक्वल टू अगर 1 रहा तो p। इसी तरह l इज इक्वल टू अगर, जस्ट a minute, I will erase and I will explode it, yeah. Where is this one? If value of l, l की वैल्यू अगर 0 है, डेट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और 3। अगर l की वैल्यू 0 रहा तो कौन सा शेप होता है ऑर्बिटल का, स्फेरिकल शेप, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। अगर l वैल्यू जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 है तो शेप क्या रहेगा, स्मॉल p, शेप क्या रहेगा, डम्बेल शेप, p ऑर्बिटल। इफ l की वैल्यू अगर 2 है तो क्या रहेगा, d, स्मॉल d, इट विल हैव स्मॉल d, टू है स्मॉल। अगर l की वैल्यू अगर 3 है तो इसका शेप रहेगा फंडामेंटल, इट इज डिनोटेड बाय m। सो दीज आर द वैल्यूज, these are the values, or these are not the value, these are the shapes of the orbit, these are the shapes of orbit s p d m। अब ये l का वैल्यू क्या है, कौन सा है, l is what, 1,
बिकॉज L इज इक्वल टू P, हियर L इंडिकेट्स व्हाट, P है मतलब क्या है, 1 है, तो कीप द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 1, डेट कम्स टू 3। 3 मतलब क्या है कि 3 मतलब ये है 3 ओरिएंटेशन है। कितने ओरिएंटेशन है पी ऑर्बिटल के? 3 ओरिएंटेशन है, बिकॉज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करा, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। तो एल का वैल्यू अगर 1 है तो ओरिएंटेशन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो और वो 3 कौन से ओरिएंटेशन है ना, एक रहेगा पी एक्स, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई एंड दिस इज पी जेड, देयर आर 3 ओरिएंटेशन। इससे पहले की जो स्लाइड में देखे थे, यहाँ क्या एल का वैल्यू क्या बोले, एम इज इक्वल टू 2l प्लस 1, ठीक है, 12 प्लस एम इज इक्वल टू 12 प्लस 1 है। एल इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0, एल का वैल्यू क्या है, 0 क्यों है, क्योंकि एस है, और हमें पता है कि एल अगर 0 रहा तो शेप में रहेगा एस, सो 2 इंटू 0 प्लस 1, इट विल कम 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट कम्स टू 1। 1 है मतलब इसका ओरिएंटेशन क्या रहेगा, ओनली 1 ओरिएंटेशन। इसलिए एस ऑर्बिटल क्या है, यहाँ भी एस ऑर्बिटल क्या है, सिंगल ओरिएंटेशन है, इसका भी सिंगल ओरिएंटेशन और इसका भी सिंगल ओरिएंटेशन। ओके, नेक्स्ट इज these are the now next one is the s हो गया, s orbital subs, next is p sub shell, p dumbbell shape, 3 orbitals are there. Now d, now we know that d orbital is having how many orientations, what is the value of m, m कैसे मालूम करेंगे यहाँ, m is वही फॉर्मूला, m is equal to 2l plus 1। l का वैल्यू क्या है यहाँ पे, l is equal to what, 2, m is equal to 2, पूरा बहुत, m is equal to 2 into 2 plus 1, so m will come what, m will come to 5, कितना है यहाँ पे 5, 5 है मतलब d ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कितने रहेंगे, 5 ओरिएंटेशन, क्योंकि ये क्वांटम नंबर कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या है, फॉर्मूला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मालूम करने का। तो m is equal to 5, so it will have dxy, dyz, dxz, next is dx square minus y square and dz square. These are the 5, these 5 are the values when l is equal to 2, when l is equal to 2 these are the 5 values जो है l is equal to। अब what is the notation of this orbital, अब ये फर्स्ट कंसीडर करो आप dyz, ये एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा है, z एक्सिस, और हमको पता है कि डी ऑर्बिटल कौन सा शेप है, डबल डम्बेल है या क्लोवर लीफ शेप। अगर डी ऑर्बिटल के लोब, ये एक लोब हो गया, एक ऑर्बिटल का, ये दूसरा लोब, अगर डी ऑर्बिटल का लोब y और z एक्सिस के बीच में ओरिएंट हो रहा, इन बिटवीन द एक्सिस, नॉट द अलोंग, अलोंग बोले तो अलोंग मतलब एक्सिस को पूरी तरह से कवर करके उसके अलोंग द एक्सिस होगा, लेकिन यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है इन बिटवीन द एक्सिस, यहाँ y और ये z, y और z के बीच में जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज y एंड z, this axis in between the y, suppose here it is consider, look to my hand, this is the x axis, this is the y, और लोब का रहेगा बीच में रहेगा, इस तरह से लोब यहाँ का बीच में रहेगा, तो ये लोब रहेगा यहाँ पे बीच में रहेगा, और along the axis मतलब इस तरह से लोब क्या रहेगा, एक्सिस के along रहेगा इस तरह से, this is along the axis and this is in between the axis। तो y और z एक्सिस के बीच में अगर रहेगा ऑर्बिट ऑर्बिट, तो उसको कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे, डी वाई जेड। इसी तरह ये एक्सिस कौन सा है, x, और ये एक्सिस कौन सा है, z। इसी अगर x और z एक्सिस के बीच में अगर लोब रहेगा डी ऑर्बिटल का, अलॉन्ग इन बिटवीन द एक्स, नॉट द अलॉन्ग, इन बिटवीन द एक्सिस अगर लोब रहेंगे ऑर्बिटल के, तो उसको बोलेंगे डी एक्स जेड। इसी तरह x और y एक्सिस के बीच में, ये एक्सिस हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, अब लोग क्या हो रहा, एक्सिस से जा रहा है कि नहीं जा रहा, बीच में से जा रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस, बीच में मतलब दो लोब्स के बीच में है, ये क्या है, दो दो एक्सिस के बीच में है, ये लोब जो है दो एक्सिस के बीच में, इसीलिए इसको बोलेंगे डी एक्स वाई। तो ये एक सेट हो गया, ये पूरा एक सेट हो गया, इन बिटवीन द एक्सिस का एक सेट हो गया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी एक्स वाई, ये एक सेट हो गया। अब दूसरा जो सेट रहेगा ऑर्बिटल का वो रहेगा
ऐसे ऑर्बिटल जो कि अलोंग द एक्सिस रहेंगे, अलोंग द एक्सिस, जैसे पी ऑर्बिटल में हमने देखे थे अलोंग द एक्सिस। पी ऑर्बिटल में क्या देखे थे हम, देखो अगर ये सपोज एक एक्सिस है, पी ऑर्बिटल का शेप क्या डम्बल है, सपोज हियर इट इज द वाई। अब लोग कहाँ होंगे, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप है, तो लोग क्या रहेगा, अलोंग द एक्सिस अगर ओरिएंट हो रहा इस तरह से अलोंग द एक्सिस, तो इसको कौन सा नाम देंगे हम ऑर्बिटल को, पी वाई, पी वाई। ठीक, हेलो, वालेकुम, आई एम इन द क्लास, आई विल कॉल बैक लेटर। इसी तरह से अगर z एक्सिस के ओरिएंट हो रहा है पी ऑर्बिटल, तो उसको बोलेंगे पी जेड, और y और x एक्सिस से हो रहा तो उसको बोलेंगे पी वाई। ओके, बट अनदर सेट इज दियर इन बीच। अब यहाँ देखो डबल डम्बल है, ये एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ये जो लोब आया ये एक्स एक्सिस को पूरी तरह कवर किया, ये लोब ने एक्स एक्सिस को पूरी तरह कवर किया। सो दिस इज द along the axis, this orbital is what, along the x axis। इसी तरह जो दूसरा लोब है डी ऑर्बिटल का, वो क्या होगा, ये दूसरा जो लोब है ये किसको कवर किया उसने, y एक्सिस को कवर किया। तो ये रहेगा कौन सा एक्सिस है, ये y एक्सिस, और ये लोब किसको अलॉन्ग द कवर कर रहा है, y एक्सिस को। तो ये लोब x एक्सिस को भी कवर कर रहा है और y को भी कर रहा है, ये हो गया x एक्सिस को और y। तो ऐसे सेट को बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या रहेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो रहेगा वाई एक्स, वाई और जेड के बीच में है, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स को भी कवर किया और वाई को भी कवर किया। मतलब ये है कि इस तरह से ये ऑर्बिटल, इस तरह से ये इधर से रहेगा लोग, एक लोग ऊपर एक लोग नीचे, इस तरह से। सपोज ये अगर मैं आपको पेन के जरिए बताऊंगा, तो ये जैसे आपका एक्सिस है, ये ऊपर से कवर किया एक लोग और नीचे से, तो ये अब आपको एक्सिस नजर नहीं आ रहा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द अलोंग द एक्सिस। अब अगर दूसरा एग्जांपल अगर लेंगे हम, तो ये रहेगा इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक्सिस को क्या करेंगे, वो एक्सिस के ऊपर से एक्सिस को कवर करेंगे। Last is dz square. Dz square means here it is oriented along the z axis. It is oriented z axis. ये लो, और ये जो सर्कल है, ये जो कॉलर है, ये कॉलर आपको जो रहेगा ये फ्रंट से जाके बैकवर्ड में आएगा, इसलिए इसको सिंपल है इस तरह से कॉलर देके एक्सप्लेन किया। सो D, it is D subshell is having how many orbitals, suborbitals? 5. dxy, dyz, dxz, and dx square minus y square and dz square. Now the magnetic quantum number can have the integral value, that is from minus L to plus L. अगर L is equal to 2 है, what is formula for calculation of M? M is equal to 2L plus 1, 2L plus 1, ये फॉर्मूला है। L का वैल्यू क्या है, यहाँ 2 रखो, 2 रखो वैल्यू, सो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, डेट कम्स टू 5। तो 5 मीन्स व्हाट, 5 मतलब यहाँ 5 वैल्यूज रहेंगे, 5 क्या रहेंगे, वैल्यूज। और 5 वैल्यूज क्या रह सकते हैं, 0 से लेके -1 +1 -2 +2। तो ये वैल्यूज एन एल के वैल्यू, सॉरी एम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे होगा 5। तो 5 वैल्यू क्या क्या होगी, 0 -1 +1 -2 +2। सो ये -2 -1 0 +1 +2। नेक्स्ट इज अगर s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या रहेगा, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, ये फॉर्मूले से कैलकुलेट। l क्या है 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 मीन्स इट विल कम ओनली 1। m की वैल्यू यहाँ क्या होगी 1, यहाँ पे है ये वैल्यूज जो है m की वैल्यू मेजोरेट से 1, दिस वैल्यूज आर द 1। तो एक वैल्यू होगी, अगर m की वैल्यू, सॉरी l की वैल्यू अगर 1 है, यहाँ पे l की ये क्या है, it is the s is what here also l, this is the s is nothing but value of l। p अगर 1 रहा तो कितने वैल्यू, 2 इंटू 1 प्लस 1, टोटल कम्स टू 3। यहाँ कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे मैग्नेटिक क्वांटम में। ये क्या है, ये सब m है, ये m है मैग्नेटिक क्वांटम। ओके, इफ l वैल्यू इज 2, अगर l अगर 2 रहा तो क्या होगा,
एल अगर 2 रहा यहाँ पे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 टोटल कम्स टू 5. सो एल की वैल्यू कितनी है 5. अब यहाँ देखो एल इज इक्वल टू 1 रहा, 2 इंटू 1 प्लस 1 डेट कम्स टू 1 मीन्स ओनली वन वैल्यू इज देयर दैट इज 0. एल की वैल्यू अगर 1 रखे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 डेट विल कम टू 3. 3 मीन्स 3 वैल्यूज. कौन कौन सी वैल्यू 3? 0 -1 +1. अब यहाँ पे सिंपल अगर ये है ऑर्बिटल तो इसको लेंगे हम एस ऑर्बिटल. ये रहेगा पी एक्स एक, ये रहेगा पी वाई दूसरा ऑर्बिटल, और ये रहेगा पी जेड. तो इट विल कम 0 -1 +1. तो टोटल वैल्यूज कितने हो गए 3. कौन कौन से वैल्यू? पी एक्स पी वाई पी जेड. एल की वैल्यू अगर 2 रखे 2 इंटू 2 प्लस 1 डेट विल कम टू 5. 5 है मतलब 5 वैल्यूज. तो करो फिर 0 +1 -1 +2 -2 तो 5 वैल्यूज होगा. तो कौन कौन से ऑर्बिटल रहेंगे डी के? 5 ऑर्बिटल अभी हमने देखे. डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. इसी तरह एफ इजिकल टू 7 रहा तो एम की वैल्यू कितना है, सॉरी एम. इसी तरह से अगर एल का वैल्यू अगर 3 रहा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 टोटल कम्स टू, इट विल कम टू 7. So it will come to 7 values are there. Okay. Now the value of L can be easily determined by means of this table. If value of L is equal to 0, it will have only one orbital, that is spherical orbital. So it will come 0. Possible orbitals are S. If value of L is equal to 1, what is meaning of L here? 1. So keep the value of L equal to 1. 2 into 1 plus 1. तो क्या होगा 2 into 1 plus 1 टोटल आ जाएगा 3. अब L अगर 3 रहता तो नोटेशन क्या रहता ऑर्बिटल का P. अब P ऑर्बिटल कितने डायरेक्शन में ओरिएंट होगा 3. 3 ऑर्बिटल रहेगा 0 1 -1. तो पी एक्स पी वाई पी जेड. इसी तरह डी का रहेगा तो डी में जो रहेगा एल का वैल्यू अगर 2 रहा तो सब शेल क्या है कौन सा रहता है डी. एल अगर 2 रहा तो नोटेशन क्या ऑर्बिटल का डी. डी ऑर्बिटल. इसके कितने वैल्यूज रहेंगे 5 -2 -1 0 +1 +2. और इसके नोटेशन रहेगा डी एक्स वाई. डी कितने ऑर्बिटल है 5. 5 नोट करो. डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी यहाँ पे माइनस होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस. इस तरह एफ के कितने रहेंगे टोटल 7 रहेंगे. तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से. नाउ फोर्थ क्वांटम नंबर इज द स्पिन क्वांटम नंबर. दिस क्वांटम नंबर अब हमने देखी कि जैसा इलेक्ट्रॉन जो है किसके अराउंड में रिवॉल्व हो रहा. इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड में रिवॉल्व हो रहा न्यूक्लियस के. तो पहले ऑर्बिटल में अगर रिवॉल्व हो रहा न्यूक्लियस के पहले ऑर्बिटल में रिवॉल्व हो रहा, उसी तरह सेकंड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व हो रहा थर्ड में. तो इन एडिशन टू रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो हो रहा है और साथ साथ में क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है. जैसा सिमिलर टू प्लेनेट मॉडल. अब क्या हो रहा है जैसा अर्थ क्या हो रहा है सन के अराउंड में रिवॉल्व हो रही. रिवॉल्व के साथ साथ क्या हो रहा है वो रोटेट भी हो रही. रोटेशन फॉलोड बाय रिवॉल्यूशन. तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या रहेगा ये इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से रिवॉल्व भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है. न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व हो रहा और अलोंग द इट्स ओन एक्सिस उसके खुद के एक्सिस में क्या हो रहा है वो रोटेट हो रहा है. तो कोई भी मोमेंटिंग पार्टिकल जो है कोई भी पार्टिकल अगर मूवमेंट कर रहा है और रोटेशन फॉलोड बाय रिवॉल्यूशन जब करता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. जैसा हमने देखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई. जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गए तो क्या होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई. तो इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसमें क्या होगा न्यूक्लियस के अराउंड में जब रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई. क्योंकि इसमें दो टाइप के मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन में, एक रोटेशन दूसरा है रिवॉल्यूशन. इट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम. स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है उसके उसके खुद के एक्सिस के अराउंड में रोटेट हो रहा. और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मीन्स ऑर्बिटल में क्या हो रहा रिवॉल्व हो रहा अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्लेन हियर. इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट है अपोजिट स्पिन. एक रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा तो उसको एक्सप्लेन करेंगे +12 और एंटी क्लॉकवाइज रहा तो -12. तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक्सप्लेन करेंगे 2 वर्ड्स. एक रहेगा upward direction, another is downward direction. So upward direction means it is clockwise direction, it is denoted by +12, another is -12. अब दो इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या होंगे न्यूट्रल होंगे. नाउ हियर it can be explained here. It is +12, one electron is +12, another is -12. It is +12, another is -12.
Now here it is also plus half and minus half. Same electron is revolving in this way. So here possible spin are clockwise or anti-clockwise. Already I have explained. Now here how to explain the orbital. Orbital can be explained by drawing the simple box. This is the orbital. ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करेंगे सिंपल बॉन्ड इट इज ओनली द नोटेशन फॉर ऑर्बिटल. अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहा तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल. दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाफ फील्ड क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे. एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन. तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे हाफ फील्ड है इसलिए इसको अपवर्ड डायरेक्शन. सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है अगर है तो वो उसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा. अपोजिट डायरेक्शन. इट इज अपवर्ड डायरेक्शन. इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड फील्ड ऑर्बिटल. दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाफ फील्ड. व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ फील्ड. क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी किसके ऑर्बिटल की यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन इसमें एक है तो इसलिए हाफ होगा. इसलिए इससे मिलेंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल. कोई भी स्पेसिस में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पेसिस कौन सी रहती है. पैरामैग्नेटिक स्पेसिस. दिस स्पेसिस आर नोन एज पैरामैग्नेटिक. दिस आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड. एक अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहा तो वो रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट रहेगा क्योंकि पैरामैग्नेटिक भी है. अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इट विल बिकम कंप्लीटली मैग्नेटिक. नाउ it is known as diamagnetic nature. 2 electrons are there or means diamagnetic. Now Pauli exclusive principle. Already we have explained. Sorry, I think we have not covered the Pauli exclusive principle in previous class. We will cover in next class. So simple notation of Pauli, simple explanation of the Pauli exclusive principle is that no 2 electron in the same atom can have all the 4 quantum number at the same time. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई ऑर्बिटल में है तो दोनों इलेक्ट्रॉन चारों भी क्वांटम नंबर को फॉलो नहीं करेंगे. 4 में से 3 क्वांटम नंबर सेम रहेंगे लेकिन चौथा क्या रहेगा. डिफरेंट रहेगा. जैसे ही एग्जाम्पल सपोज हियर दिस इलेक्ट्रॉन इज द सपोज दिस इलेक्ट्रॉन आर द 4. ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर है आपको 4s2 इलेक्ट्रॉन. सपोज हियर दिस नोटेशन इज व्हाट 4s2. ये ऑर्बिटल कौन सा है 4s2 मतलब यहाँ पे ये ऑर्बिटल है 4s ऑर्बिटल. ठीक है. कितने इलेक्ट्रॉन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन. सपोज यार एक इलेक्ट्रॉन को मैं नाम दूंगा ए इलेक्ट्रॉन. दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैं नाम दूंगा बी इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब ए इलेक्ट्रॉन का और बी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है एन. एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है एल. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है एम. और स्पिन क्वांटम नंबर. ए इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4 है. ये क्या है 4. ये दिख रहा है ये 4. ये 4. इट इज इंडिकेट व्हाट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो एन का भी 4 है. सॉरी ए इलेक्ट्रॉन का भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है. बी इलेक्ट्रॉन का भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4. एल वैल्यू क्या है एल. एल वैल्यू एस इज इक्वल टू 0. एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है ए इलेक्ट्रॉन का 0. बी इलेक्ट्रॉन का भी क्या है 0. एस भी क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है इट इज ऑल्सो 0. 2 इंटू क्योंकि ये कौन से ऑर्बिटल है एल. कौन सा ऑर्बिटल है स्फेरिकल ऑर्बिटल इसलिए इसका ओरिएंटेशन क्या रहेगा 0 0. अब एक इलेक्ट्रॉन अब ए इलेक्ट्रॉन का एस वैल्यू क्या है. एक जो है ए इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे इट इज प्लस हाफ. इट इज व्हाट प्लस हाफ. लेकिन दूसरा जो इलेक्ट्रॉन उसका डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड. इसका बी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसलिए इसको बोलेंगे आप माइनस हाफ. तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने क्या क्या है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में चारों क्वांटम नंबर फॉलो नहीं करते. जैसे ए इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4. बी का भी 4. ए इलेक्ट्रॉन का एजीमुथल क्वांटम नंबर 0. बी इलेक्ट्रॉन का भी 0. ए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक 0. बी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0. लेकिन ए इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है प्लस हाफ. लेकिन बी का क्या है माइनस हाफ. तो 3 क्वांटम नंबर जो है सेम है प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक. लेकिन चौथा क्वांटम नंबर क्या है डिफरेंट है दोनों इलेक्ट्रॉन का. तो ये था पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव ऑल द 4 वैल्यूज आइडेंटिकल. जैसे कि चारों भी क्वांटम नंबर क्या रहेंगे सेम नहीं रहेंगे. 4 में से कोई 3 सेम रहेंगे चौथा डिफरेंट रहेंगे. सो हियर quantum number. So small n is the principal quantum number. Small sorry let's take that. I will erase this one. So here summary of this quantum number is here we will explain option. So this is the principal quantum number is denoted by small n. Small n
Okay, small n. Okay, only 2 minutes are remaining. I will explain here. Principal quantum number is small n, azimuthal quantum number is small l, magnetic quantum number is small m, and spin quantum number is small s. Okay. So this indicates what? Principal quantum number indicate main energy level, azimuthal quantum number explains sub energy level or shape of orbital, magnetic quantum number explain what? Orientation of orbital, and spin quantum number explain the spin of electron. Okay. Next is all these quantum numbers out there. So I will stop here. Okay, all the four quantum numbers out there we have explained.